Okay. So, guys, in the last class, what we had done in the introduction was statistical distributions, the normal distribution. We are about to do normal, standard normal, and T, and along with that, we were going to do the central limit theorem and the essence of the strong law of large numbers and the weak law of large numbers. Let's start with just a small recap of what we had done in the previous session as well. Now, we talked about that a normal distribution is a continuous random variable. Okay, a continuous random variable is basically going to give you in general normal distribution. Now, this is the most important one because normal से बाकी सारी चीजें कई सारे distributions are dependent on normal distributions. For example, T distribution is somewhat like a normal distribution with certain different parameters. Okay, so this is the most used distribution, and that's why this becomes the single most important probability distribution. And it's a continuous distribution. It's bell shaped. This is how it looks. I told you yesterday about the inference that your mean plus minus 1 sigma will give you 68% area, your mean plus minus 2 sigma will give you 95% of the area, and mean plus minus 3 sigma will give you 99.7% area. This is what we had done yesterday in the last class. And then the way to write a normal distribution, किस तरीके से हम normal distribution लिखते हैं, वो that is also very important. Now suppose you are trying to gauge the weight of a particular class. So weight जो होगा वो अपने आप में एक variable है जो which is a random variable. that variable वो एक stochastic process से आ रहा है और वो कोई भी value ले सकता है. We talked about the issue of random variable as well, कि random variable generate कैसे होता है. It's basically a mathematical process of a random process, and उस random process से एक number generate हो रहा है. ठीक है. So now weight, like in this case, weight is a variable, is a random variable, say x, and when we say that x is normally distributed, this is how we put it out. X normally distributed, and this is your first parameter, which is mean, and this is your second parameter, which is your variance of x. Okay. Now note again, because it's a continuous random variable, discrete नहीं है. ठीक है. तो अगर discrete होता तो उसके अंदर CDF बनता, PDF नहीं बनता. So because it's a continuous random variable, it may take any value from minus infinity to plus infinity. This is another thing that we noted. Then we also talked about this aspect, area under the curve. हमने इसके बारे में बात करी थी. Then this was the mathematical function that I told you. It's not very often used, but still it's good to remember this. Then the two parameters that I told you कि mu and sigma are the two parameters. उसके बाद we also talked about the linear combination of normally distributed random variables is going to be a normally distributed random variable. So in the last class we talked about that x is normally distributed. X जो है normally distributed with this mean and this variance. Y normally distributed है. Any linear combination, कोई भी आप linear combination ले लो, जैसे इस केस में W दे रखा है, W is equal to ax plus by, कोई भी linear combination ले लो, this W will also be normally distributed with the mean being a into जिसको आपने multiply किया a into mean of this, b into mean of this, and the variance being a square into variance of x and b square into variance of y. So this is how linear combination of random variable, of normally distributed random variable will also be normally distributed random variable. ये बहुत ज़्यादा important हो जाता है. Why? Because we are going to assume, जब हम econometrics करेंगे हम एक error term की बात करेंगे और उस error term का हम बोलेंगे कि we are assuming that it is normally distributed. We assume that is normally distributed, और क्योंकि वो normally distributed होगा, वो error term normally distributed होगा, any linear combination of that error term will also be normally distributed. इसीलिए ये definition बहुत ज़्यादा important हो जाती है when you go into econometrics. Then
Skewness and kurtosis, I told you that skewness will be 0 and kurtosis will be 3. Let's talk about now standard normal distribution. Okay, now in standard normal distribution, guys, what we try to do is we try to standardize the variable. ठीक है, as it says the variable is now known as a standardized or a unit variable. अब वो क्यों करते हैं हम कई बार, क्योंकि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे वो डिफर कर सकते हैं. एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल गार्गी अपना कॉलेज का वेट का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहा है और वो कह रहा है कि मैं किलोग्राम्स में लूंगा सबका वेट. कमला नेहरू कॉलेज कहता है कि नहीं हम तो पाउंड्स में लेंगे. ठीक है, तो पाउंड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किलोग्राम्स के डिस्ट्रीब्यूशन से डिफरेंट होगा. दिस इज समथिंग लाइक दिस कि हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशंस जो होंगे वो अलग अलग होंगे. क्योंकि किलोग्राम्स जो होगा वो यहाँ पर आ रहा होगा, पाउंड्स का तो आप अलग से लोगे डिस्ट्रीब्यूशन, वो अलग उसका डिस्ट्रीब्यूशन का शेप अलग होगा, उसका वेरिएंस अलग होगा. ठीक है, कुछ इस तरीके से डिफरेंस आ जाएगा वेरिएंस और क्या कहते हैं मीन के अंदर. सो you cannot basically compare these kinds of distributions. अगर आपका स्केल भी डिफरेंट है, अगर आपका इन जनरल सैंपल्स भी डिफरेंट हैं, बट आप उनको कंपेयर करना चाहते हो. सो when you want to compare them, what you need to do is you kind of standardize them. Now the thing is that these expected mean and variance of one normal distribution can differ from another one as shown here. So मीन और वेरिएंस देखो, यहाँ पर दोनों के मीन डिफरेंट हैं, यहाँ दोनों के मीन सेम है, बट यहाँ पर देखो दोनों के वेरिएंस कम है. इसका वेरिएंस कम आ रहा है, इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस ज्यादा है. इस केस में मीन एंड वेरिएंस दोनों ही डिफरेंट है. बट व्हेन यू वांट टू कंपेयर देम, व्हेन यू वांट टू पुट देम ऑन सेम स्केल, then what you need to do is you need to standardize your variable. So how do we compare normal distributions, since the normal distribution differ in mean and variance? तो जहां पर आपको comparison करना है वहां पर आप उस variable को standardize करते हैं. But in general, guys, remember in econometrics we usually standardize data as well, or in general in data science we usually follow this as a good practice of standardizing data. That's taken to be as a good practice value. Good practice in data science. And now how do we standardize? हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये मेरा मीन है, मैं हर xi को उसके मीन से सबट्रैक्ट करता हूँ. ठीक है, तो इन जनरल क्या होगा, इन जनरल जब आप इसको सम करने की कोशिश करोगे, यू माइट बी नोइंग द थ्योरम दैट the sum of observations from its mean is 0. Guys, ये theorem याद है? Guys, ये theorem याद है आप लोगों को? Sum of this thing, the sum of observations from its mean is 0. तभी तो वो mean होगा. अगर I took 5-6 values, तो उसका sum करोगे, for example 10, 20, 30, 40, इसका mean जो है वो 30 है. So 10 माइनस, अगर मैं 30 करूंगा तो -20, -10, 0, 10, 20, तो you just take the sum, you will get it as 0. ठीक है, so हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उसको शिफ्ट किया, पूरी ऑब्जर्वेशंस को आप क्या कर रहे हो, आपने उसको मीन से माइनस करके उसका एक जो बेस है वो शिफ्ट कर दिया. So let me show you in certain diagrammatical terms to put in more slides. देखो, now what you have done, now let me know if you understand this or not. If you don't, we'll forget about it, but still I would like you to understand this if it's possible. Now ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है. How do I take your distribution, class and weights, ठीक है. ये आपके डेटा पॉइंट्स हैं. यहाँ पर एक्सेस पे क्या है, एक्सेस पे मैंने लिख दिया यहाँ पर योर एज, ठीक है, एंड नो लेट मी नॉट राइट योर एज, करेक्ट. यहाँ मैंने लिख दिया आपका योर से फैमिली इनकम, और यहाँ लिख दिया कैट स्कोर. यूजुअली वी फाइंड द रिलेशन कि जितनी ज़्यादा फैमिली इनकम होगी उतना ज़्यादा कैट स्कोर होगा. द रीज़न बीइंग, आप ज़्यादा महंगी से महंगी कोचिंग, यूजली ये यूएस का एग्जांपल, कैट की जगह वहाँ पर 60 स्कोर्स हैं, ठीक है. दिस इज एन एग्जांपल विच इज ऑल्सो देयर इन योर रीडिंग, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस एग्जांपल कि जैसे जैसे फैमिली इनकम इंक्रीज होती है आपका 60 स्कोर जो है
या कैट स्कोर हमारे केस के अंदर वो इंक्रीज होता जाता है, बिकॉज यू हैव मोर रिसोर्सेज, आप बेटर बुक्स खरीद सकते हो, आप बेटर कोचिंग जा सकते हो. So and in US this is much more accentuated, because getting into schools like Harvard, Princeton, you need to pay a lot of good tuition fees as well. ठीक है. So now this is the kind of data that you have. अब इस डेटा को अगर आप नॉर्मलाइज करना चाहते हो तो बेसिकली आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप इस डेटा को इस एक्सेस पे ले जाना चाह रहे हो. इसका y का कुछ मीन होगा, x का कुछ मीन होगा. आप बेसिकली इस डेटा को रोटेट कर रहे हो इस तरीके से कि एवरी वैल्यू इज नाउ सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ x. अभी क्या है, x की वैल्यूज देखो, x की वैल्यू 0 से लेके यहां तक से 1 लाख तक के लिए आ रही है. ठीक है, 1 लाख या कुछ भी. आप इस पूरे डेटा पॉइंट को इस तरीके से जब आप रीसेंटर कर रहे हो इस डेटा को, तो आप कह रहे हो कि मुझे अब जो सारी वैल्यूज चाहिए वो चाहिए यहाँ पर x बार है मेरा, ये मेरा x बार है. ठीक है, और x बार के ऊपर अब मुझे प्रोजेक्टेड चाहिए सारी वैल्यूज. लेट मी शो यू हाउ. अब ये वैल्यूज सारी ऐसे हो गई, x बार कॉमा y बार पे, इस तरीके से कि आपका x बार कॉमा y बार आ गया यहाँ पर. तो आपने एक तरीके से क्या किया, आपने कहा कि मुझे सारी वैल्यूज इस तरीके से प्रोजेक्ट करनी है कि मुझे अब अपने मीन से देखना है कि मीन से सारी वैल्यूज कितनी दूर है. पहले आप यहां से लेके यहां तक देख रहे थे, अब आप देख रहे हो कि इस पॉइंट से ये सारी वैल्यूज कितनी दूर है. तो आपने बस अपना जो ओरिजिन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है, उसको आपने चेंज कर दिया है. ठीक है, एंड दिस इज व्हेन कोई चीज अब हमारा मीन होता है तो लाइफ में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी चीजें मीन पे होंगी. ठीक है, यूजुअली हम कहते हैं कि मीन इज बेसिकली व्हाट यू इन जनरल यू ऑब्जर्व. तो अब आप सारी ऑब्जर्वेशंस को देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू योर मीन, कि मीन से कितनी दूर है ऑब्जर्वेशन, एंड उनका सम तो इन एनी केस 0. तो आपने उसको स्टैंडर्डाइज करने का मतलब होता है आपने उसको एक छोटे स्केल पे ले आए. ठीक है, एंड देन व्हाट यू डू इज, देन पहले तो ये चीज समझ में आई गाइस. नहीं समझ में आई तो भी चलेगा, बट अगर इफ यू गॉट इट ग्रेट. ठीक है, वील टॉक अबाउट दिस लेटर एज वेल, बट इफ यू गॉट द हंच ऑफ इट कि व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू, देन दैट्स वंडरफुल. समझ में आया किसी को या किसी को नहीं समझ में आया? So what does y bar represent? Y bar is basically representing what is the average value of. तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि अगर किसी की एवरेज इनकम 40,000 है तो यहाँ पर सारे सबकी इनकम्स होंगी. सपोज इनकम फ्रॉम 0 टू लेके इनकम 1 लाख तक, 1 लाख तक की सबकी इनकम. तो एक मीन इनकम होगी, मीन इनकम सपोज हमने ले लिया 50,000. ठीक है, यहाँ पर सबके स्कोर्स होंगे. ठीक है, स्कोर्स, कैट का स्कोर फ्रॉम 0 परसेंटाइल टू 100 परसेंटाइल. तो यहाँ पर सपोज हमने कहा कि एवरेज जो आ रहा है वो 60 परसेंटाइल आ रहा है. तो ऑन एवरेज वी विल से दैट जो हमारा क्लास का जो ओवरऑल एवरेज है, कि एवरेज इनकम, गिवन एवरेज इनकम 50,000 होगी, आपका एवरेज स्कोर जो होगा वो 60 परसेंटाइल होगा. सो ये आपको ये एवरेजेस बता रहा है कि ऑन एंड होल डेटा कहाँ पर सेंटर हो रहा है, पूरा का पूरा डेटा हमारा सेंटर कहाँ पर है. तो ये जो पॉइंट है, हमने क्या किया, हमने पूरे के पूरे एक्सेस को ट्विस्ट करके हमने इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, जब हम स्टैंडर्डाइज करते हैं डेटा को, तो हम क्या करते हैं, हम ओरिजिन का पॉइंट यहां से चेंज करके हम ओरिजिन का पॉइंट ये ले लेते हैं. क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे जो वेरिएशंस होते हैं, हम मीन से ही हम वेरिएशन देखना चाहते हैं कितना दूर बाकी सारी चीजें. सो ये बेसिक डेटा साइंस के अंदर वी ट्राई टू डू दिस, दैट वी ट्राई टू चेंज द ओरिजिन. बट व्हाई इज इट रेलेवेंट हेयर? द रीजन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हेयर इज बिकॉज जब आप डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात कर रहे हो, अगर उनको आपको कंपेयर करना है तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली कहते हो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन अलग है, दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन का मीन अलग है. वी वांट टू सी कि ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस कितनी दूर है. ठीक है, तो आप क्या कहते हो, हर वैल्यू को मुझे उसके मीन से सब्ट्रैक्ट कर दो. तो एक तो आपका जो ओरिजिन है वो चेंज हो गया, एंड देन जो उसका वेरिएंस है आप उससे भी डिवाइड कर दो. नाउ यू कैन एक्चुअली कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशंस इररिस्पेक्टिव वो डिस्ट्रीब्यूशंस का वेरिएंस, इररिस्पेक्टिव कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो उसका स्केल क्या है. तो अपने स्केल एंड ओरिजिन दोनों से एक बार डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद अब आप उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आओ टू सी दैट हाउ डिफरेंट दे आर. सो दैट्स द एसेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन इज बेसिकली डन टू कंपेयर योर डिस्ट्रीब्यूशंस. ये जो वेरिएबल होगा z, वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा with mean as 0 and variance as 1. And the beautiful part about doing the reason that this is so beautiful and so important is that
आप कैसा भी वेरिएबल ले लो, x जो है, अभी हमने क्या बोला था, हमने कहा था x जो है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, नॉर्मल आईआईडी। हमने कहा था ना x एक रैंडम वेरिएबल है और वो एक नॉर्मल इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो कहां से आ रहा है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है। रिमेंबर x हमने क्या बोला था, x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन एज म्यू एक्स एंड वेरिएंस एज दिस, ये हमने बोला था। x ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, बट जब आप स्टैंडर्डाइज करने लग जाते हो तो x मैटर ही नहीं करता, x किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से आए, एनी डिस्ट्रीब्यूशन से आए, उसके बाद हम अगर उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं तो हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं, ठीक है, हम उसके वेरिएंस के बारे में कुछ कह सकते हैं, हम उसके मीन के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो वो अभी हम बाद में देखेंगे, इसको हम CLT बोलते हैं, दिस इज बेसिकली योर सेंट्रल लिमिट थ्योरम, वी विल सी दिस। But the importance of standard normal distribution is that you bring everything on a common platform. You change the origin, you change the scale. So it's nothing but changing origin and scale. Changing origin and scale of your original distribution. आप distribution लो, आप उस डिस्ट्रीब्यूशन को आपका जो रैंडम वेरिएबल है उसको उसके मीन से सबट्रैक्ट करो और स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करो, इररिस्पेक्टिव कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, आपको एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं XZ को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। सो जस्ट कीप इन माइंड गाइज दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी विल इवन टॉक अबाउट दिस फर्दर। let's see this through. I think there should be a question on this. Guys, try this question today, ठीक है, एक बार ट्राई करना है this question. I hope you know how to read Z tables, ठीक है। तो just try this question. There's nothing very fanciful about it. आपके पास एक this is now you have a bakery which has a mean and a variance. तो आपको पता है कि ये एक मीन और वेरिएंस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। अब एक बेकरी है, ठीक है, अब रैंडम वेरिएबल क्या है, ये x जो है एक रैंडम वेरिएबल है जो बेसिकली आपको बताता है कि आपकी सेल कितनी होगी। सेल कुछ भी हो सकती है, किसी भी दिन कितनी भी सेल हो सकती है, ठीक है। सो x एक रैंडम वेरिएबल है एंड उसका x का एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि x जो है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है वेरिएबल है जिसका मीन जो है वो 70 है। हमें ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन पता है, पहली बात तो आपको कभी ये ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी नहीं, बट हम कह रहे हैं कि चलो हमें पूरी डिस्ट्रीब्यूशन पता है कि पूरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है ना। इफ यू नो द डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है मीन जो है इसका 70 है, इसका वेरिएंस जो है उसका 9 है, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 9, ठीक है ना। द थिंग इज कि अगर आप देखो कि हम द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ सेल ऑफ ब्रेड्स इज मोर देन 75, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप दूर जाओगे इससे उतनी कम प्रोबेबिलिटी होती जाएगी, बिकॉज लाइफ इन जनरल विल गिव यू 70। दिस इज व्हाट दे हैव सेड, दैट हमने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया और बहुत सारे डेटा का जब हमने मीन निकाला तो 70 आ गया था। तो आप जितना 70 से दूर जाओगे उतनी कम आपकी प्रोबेबिलिटी होती जाएगी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आप बस इस z की इक्वेशन के अंदर व्हाट यू नीड टू डू इज, आप ये निकालना चाहते हो 75 वाला, तो आप ये वाला एरिया निकालना चाहते हो कि व्हाट विल ये एरिया कि ग्रेटर देन 75 क्या प्रोबेबिलिटी है। सो जस्ट प्लग ऑल ऑफ दिस इनटू योर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल एंड यू विल गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी ये वाली। आई होप गाइज यू नो हाउ टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। ये करा होगा गाइज, जेड टेबल पढ़नी आती है सबको? यस सर, ठीक है। तो यस सर, ऑल यू नीड टू डू इज, अब आपको यहाँ पर आपको ये मिल गई है, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, और उसके नाउ दैट यू कैन प्रोबेबली सी कि ये सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इतना इससे बाहर आएगा नहीं आएगा। नाउ आई कैन टेल यू ऑल ऑफ दिस इन अनदर वे,
अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी हम इकोनोमेट्रिक्स में तो वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेट मी शो यू व्हाट दिस क्वेश्चन सेज इन अनदर वे। सेम क्वेश्चन हम लेते हैं बट उसको मैं डिफरेंट स्केल पे पुट कर रहा हूँ। ये आपका मीन था 70। नाउ अब एक और डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन जो है 75, ठीक है, ये मीन 75। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। यहाँ पर आप क्या कोशिश कर रहे हो, आप बेसिकली बताने की कोशिश कर रहे हो कि 75 अगर आ रहा है मेरे पास, अगर मेरे पास 75 आ रही है तो वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है। नाउ इन अ सेंस दिस इज व्हाट वी विल डू इन इकोनोमेट्रिक्स एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग एज वेल, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्लेवर ऑफ दिस। हम बेसिकली अगर 75 मैंने ऑब्जर्व करी 75 वैल्यू की, अच्छा 75 आ गई है, ठीक है, तो 75 का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने सपोज मैं कहता हूं कि मैंने एक नई मशीन लेके आया मार्केट से, मैंने ब्रेड के लिए एक नई मशीन लेके आया और मेरे पास आया कि उस दिन में 75 और टेस्ट अच्छा हो गया उस मशीन से ब्रेड्स का, और उसकी वजह से मेरे पास 75 बिक गई है ब्रेड्स। तो कैन आई से कि न्यू प्रोसेस हैज वर्कड और नॉट? तो ये बेसिकली आप, दिस इज व्हाट यू ट्राई टू डू इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि अगर मेरे पास ऑब्जर्व्ड 75 वैल्यू आ गई है तो वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन से आई है, ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन से आई है कि कोई नई डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है, तो यहां पर हमारे z वैल्यूज अगेन बिकम्स वेरी यूजफुल। So that's the essence of hypothesis testing, but that's we have not covered it. But in general, what you try to do is जब आप ये एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हो, this is the area that you are trying to find out. तो आप z में वो वैल्यू प्लग इन करते हो, z इज इक्वल टू 75 जो आपकी ऑब्जर्व्ड है माइनस जो आपकी एक्सपेक्टेड है अपॉन द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दिस विल गिव यू सम वैल्यू ऑफ z और आप ये एरिया निकाल लेते हो। तो ये एरिया को हम कंपेयर बाद में करेंगे एक दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन से, आप देखेंगे कि हमारे हाइपोथेसिस क्या है। So this is also basically later on we will talk about certain things called type 1 error, type 2 error. तो टाइप 1 एरर में हम देखेंगे कि अगर हमने देखना है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे देखना है, तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे हम यहाँ पर z की एक वैल्यू हमने ले ली, तो दिस ओनली z की वैल्यू जो है वो 0 से +3 के अराउंड जाती है और -3 के अराउंड जाएगी कुछ। तो आपके पास जो वैल्यू आई है z की वो आई है 1.67, ठीक है। तो हम ये वाला एरिया देख रहे हैं बेसिकली कि ये एरिया कितना है। We'll talk about Z tables as well in detail कि Z tables यहाँ पर ये Z table बना हुआ है। तो what you have actually done is that while putting everything in a standard normal way, in a standardized normal Z table, what you can do is you can easily calculate the area under the curve, क्योंकि Z का area under the curve is defined। तो आपने क्या किया, आपने 1.67 निकाला और 1.67 के हिसाब से आपके पास ये एरिया आ गया कि ये 4%, 4.75% एरिया। सो दैट मीन्स इन 90%, यूजुअली 90 ये वाला एरिया भी आप काउंट कर लोगे तो 95% एरिया के केस 95% प्रोबेबिलिटी में आपकी जो है आप इससे ज्यादा ब्रेड नहीं बना पाओगे, बट 5% जो चांस है यू कैन मेक दैट, यू मे बी एबल टू मेक मोर देन 75 ब्रेड्स। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। जब आप Z टेबल का यूज करते हो, व्हेन यू यूज स्टैंडर्ड नॉर्मल का फायदा ये होता है दैट यू हैव अ स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल Z, एंड इस स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल Z का हर सारे एरियाज डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल उसका डिफाइंड है, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल डिफाइंड है, और उसका 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी डिफाइंड है। तो अगर आपको सिंपल ये वैल्यूज ही पता है तो आप Z की आपको ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको 95% का आपको पता चल जाएगा, इट्स 1.96, ठीक है। इस वाले का आपको पता चल जाएगा ये 2.33 समथिंग आ जाएगा, या आपको 1.67 समथिंग कुछ हो जाएगा, 1.7 1.67। तो आपको सिंपल ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाई यू वांट टू कन्वर्ट एवरीथिंग टू Z, बिकॉज वी कैन इजीली टेस्ट कि अच्छा हमारा Z की वैल्यू ज्यादा आ रही है कि कम आ रही है। The moment it's more, we can say कि अच्छा ये इसकी तो probability बहुत कम है। Now the fact that this is so important, let's see। अब आपके पास दो distribution है, ये देखो। Let's see the second question. The another question says that what is the probability of finding the daily sale between 65 and 75 loaves। तो अब
until unless you convert into Z, it will be difficult for you to find out that area. तो आपको क्या करना है, this is your 70, आपको ये एरिया निकालना है 75 and 65 के बीच में. This is the area that you want. And all you need to do is, आप इसको कैसे कंपेयर करोगे, आप इसको Z में कन्वर्ट कर दोगे, और Z में कन्वर्ट करके क्या होगा, अगेन Z क्या करता है, Z is normally distributed with mean as 0 and 1. इसको मैंने आपको क्या बताया कि आपको रीस्केल कर देगा. कैसे रीस्केल करेगा, 70 will be equal to what guys, what will 70 be equal to? 0. 70 will be equal to 0. क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू मीन, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी वो मीन की इक्वल होगी, तो ये 0 हो गया. और इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा. 75 की कोई एक वैल्यू आएगी, हमें पता है कि 75 की वैल्यू 1.67 आ गई Z, इसकी वैल्यू आ गई -1.67. ठीक है, बस आपको ये वाला एरिया अब आपको चाहिए. you can this is the area that you want to calculate, and here you are, ये आपकी 90%. so the reason that you convert everything into Z is it makes your task easier to calculate probability. But that's not the only task guys. We will see कि स्टैंडर्ड नॉर्मल का एक CLT के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एंड कंपेयर करने का डिस्ट्रीब्यूशंस, आप जब दो डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर करना चाहोगे, ठीक है, तो बहुत यूजफुल आ जाएगा. फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, दो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल गाइस, नहीं समझ में आएगा, इट्स कंप्लीटली ओके, वी विल डू दिस एग्जांपल, बट लेट मी गेट बैक टू दिस. आई एम नॉट श्योर कि तुम लोगों ने किया है. हैव यू डन डिफरेंस इन मीन्स? बिकॉज आई एम वेरी अफ्रेड कि मैं वो इंट्रोड्यूस कर दूंगा एंड समझ नहीं आएगा. हैव यू डन डिफरेंस इन मीन्स? हाइपोथेसिस टेस्टिंग कुछ करा है अभी तक गाइस? एनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग दैट यू हैव डन? So we did that very briefly. Like difference of mean was very brief. अच्छा, ठीक है. उसमें डेटा एनालिसिस में किया था? Yes, sir. अच्छा, ठीक है, ठीक है, We didn't cover that well. ठीक है. सो नाउ सपोज आई आस्क यू कि दो फैक्ट्रीज हैं, लेट मी ओपन दिस अगेन. दो फैक्ट्रीज हैं, और एक फैक्ट्री जो है, दो बेकरीज हैं बेसिकली, दो बेकरीज हैं, एक 70 प्रोड्यूस करती है, एक 72 प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है. तो इज दिस डिफरेंस इन मीन्स आई मीन वेरी सिग्निफिकेंट और नॉट? तो हम वो जज करने की कोशिश करते हैं. तो ये दो डिस्ट्रीब्यूशंस को हम देखते हैं कि ये कितना ओवरलैप कर रही हैं, कितना स्प्रेड आउट है, ठीक है. सो दैट्स द काइंड ऑफ एनालिसिस दैट वी डू. अब लेट मी शो यू दिस थ्रू अनदर. गाइस कैन यू सी दिस? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ मार्क्स हैं बच्चों के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज. कैन यू सी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है कितनी अलग अलग है? इसका मीन कुछ यहाँ पर आ रहा होगा, इसका मीन कुछ यहाँ आ रहा होगा. बेसिकली ये क्या है? दिस इज कैटेगरी फिल्ड इन बाय डिफरेंट कैंडिडेट्स, और उनके फाइनल एंट्रेंस मार्क्स हैं. दिस इज एन एक्चुअल डेटा गाइस दैट आई एम वर्किंग ऑन, ठीक है. तो अनरिजर्व कैटेगरी के देखो मार्क्स ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद यू हैव द EWS कैटेगरी, फिर उसके बाद यू हैव द OBC नॉन क्रीमी लेयर, देन यू हैव द SC एंड देन यू हैव द ST. तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं अलग अलग आ रही हैं लोगों के, और उनके अलग अलग मार्क्स हैं. सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के, उसका मीन ये आ रहा है, और उसका वेरियंस ये है. सिमिलरली ऐसा वेरियंस अगर आप लास्ट देखो तो ST का जो वेरियंस है वो वेरियंस बहुत ज़्यादा, वेरियंस बहुत कम है, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट है. सॉरी वेरियंस उसका बहुत ज़्यादा है. इनका वेरियंस, जनरल कैटेगरी का वेरियंस बहुत कम है, बट उसका मीन ज़्यादा है. तो यू वांट टू कंपेयर दीज डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है. इन जनरल यू वांट टू कंपेयर कि ये वाला जो मीन है ये इस वाले मीन से सिग्निफिकेंटली दूर है या नहीं है, ठीक है. सिमिलरली यू कैन से कि अच्छा आपने जो है EWS कैटेगरी को एक नई कैटेगरी बना दी. यू माइट हैव हर्ड कि EWS लास्ट ईयर एक नई कैटेगरी बनी, ठीक है. तो EWS एक नई कैटेगरी बनी, तो उनका मीन एक्चुअली में जनरल कैटेगरी से बहुत डिफरेंट है कि नहीं है? आपने ये सिर्फ पॉलिटिकल रीजन की वजह से किया है कि एक्चुअली में EWS स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो नॉर्मल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से कम आते हैं. बाय द वे दिस इज जस्ट द फर्स्ट कट ऑफ. आपका एक्चुअली में जो रिजल्ट है वो ये है, दिस इज द रिजल्ट. तो दिस रिजल्ट बेसिकली शोज, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी को कंपेयर करो विच इज ब्लू टू द कैटेगरी ऑफ EWS विच इज ग्रीन, ये देखो ब्लू का ये है और ग्रीन का ये है. इफ यू सी on an average the mean of the EWS category is even more than that of the general category.
तो दिस काइंड ऑफ ऑल्सो शोज कि रिवर्स कॉजालिटी, एक्चुअली रिवर्स रिलेशन है, लोगों का एक्चुअली मार्क्स ज्यादा है EWS कैटेगरी में जनरल कैटेगरी से. सो दिस इज व्हाट यू ट्राई टू बिल्ड अ हाइपोथेसिस. पहले आप ये बना सोचते हो कि अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूशंस अलग अलग हैं, ये ओवरलैप कर रही होंगी डिस्ट्रीब्यूशंस, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस होंगी, एंड देन हम उनके मीन्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. और कैसे कंपेयर करोगे, ये जेड के थ्रू कंपेयर करने की कोशिश करोगे कि विच विल सी लेटर ऑन कि हम जेड की वैल्यू देखेंगे, अच्छा इसके अंदर जेड की वैल्यू ये आ रही है, इसके अंदर जेड की ये वैल्यू आ रही है, ओवरलैप कितनी कर रही है ये डिस्ट्रीब्यूशंस. तो उस तरीके से आप कोशिश करते हो कि ये सेम डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस आई कैन से दैट EWS की और अनरिजर्व की डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रीटी सिमिलर है. आपको उनको अलग अलग कैटेगरी करने की जरूरत है ही नहीं. बट जब हम फर्स्ट कट ऑफ देखते हैं तो फर्स्ट कट ऑफ में उनके लिए कट ऑफ कम है और जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ ज्यादा है. सो आई होप गाइज यू कुड probably get a small sense of what we will try to achieve later on. थोड़ा समझ में आया guys? थोड़ा सा भी समझ में आया तो I think if you get the drift of it, why we use it. I'm not at all explained you anything, to be honest, but I'm just trying to get you the hint of what we will be doing in the future classes. किसी को आइडिया लगा? Yes, sir. पूछना है लोगों से. हिमांशी, प्रीति महतो, नंदनी, रोली. Yes, sir. गुड मॉर्निंग. समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया? Sir, I have a bad throat. अच्छा, ओके. सो बट समझ में आया? हाँ जी सर. ठीक है. नंदनी, यू आर अनम्यूटिंग योरसेल्फ. Yes, sir. ठीक है. सो गाइज, this is basically what we try to do in hypothesis testing. हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस को देखते हैं और डिस्ट्रीब्यूशंस को हम चेक करते हैं कि उनका मीन और वेरिएंस डिफरेंट है या नहीं है, विच बेसिकली टेल्स अस कि अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूशंस अगर अलग है तो इनको ट्रीट भी अलग करने की जरूरत है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू और टॉपिक. ठीक है, इस तरीके से आप ये निकाल लो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट random sampling from a normal population. तो ये तो बेसिकली कुछ नहीं है, आप बेसिकली रैंडम जनरेटर्स करते हो. नाउ वी विल टॉक अबाउट जो लास्ट पार्ट हमने किया था इन द प्रीवियस क्लास, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन x bar. नाउ इंस्टेड ऑफ व्हाट वी आर सेइंग इज दैट ये जो सैंपल मीन है आपके पास पूरी पॉपुलेशन पहले बात तो कभी नहीं होगी. ये जो है आपके पास जो आप पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हो जिसका मीन म्यू है एंड वेरिएंस सिग्मा एक्स है, ये आपके पास कभी नहीं होगा. यू विल नेवर हैव अ रैंडम वेरिएबल एक्स विच इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एक्स एंड वेरिएंस एज दिस. ये आपके पास कभी नहीं होगा. पूरी पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना इज इम्पॉसिबल. व्हाट यू हैव इज बेसिकली इस आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दी जाएगी कि अच्छा हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम अज्यूम कर रहे हैं. ठीक है. एंड उसमें से हम सैंपल्स उठा लेते हैं कुछ. हम इस डिस्ट्रीब्यूशन में से कुछ 10 लोगों का सैंपल उठाया. सपोज ये 4000 लोग हैं गार्गी कॉलेज के. हमने 10 लोगों का सैंपल उठाया. ठीक है. और उसका मीन देखा. तो व्हाट वी हैव डन इज x1 x2 x3 x10 हमने 10 लोग उठाए और उसका सैंपल, ये हमारा फर्स्ट सैंपल था, सैंपल मीन देख लिया. ये आपके पास फर्स्ट सैंपल मीन आ गया. ठीक है. सैंपल मीन ये फर्स्ट सैंपल मीन है और सैंपल वेरिएंस जो होगा वो उसको हम x1 s1 स्क्वायर से लिखेंगे. ठीक है. इस तरीके से हम सैंपल वेरिएंस लिखेंगे. ऐसे आपने एक सैंपल उठाया, ऐसे आप मल्टीपल सैंपल्स उठा सकते हो. 10 लोगों का ही आपने एक और सैंपल उठाया x1 से लेके x2 टिल x10 और वो आपके पास दूसरा सैंपल आया. ऐसे आपने सपोज आपने 10 सैंपल ले लिए. ठीक है. तो ये जो है x1 बार, कैन यू गाइज टेल मी वेदर इट विल बी अ रैंडम वेरिएबल और नॉट? दैट इज माय क्वेश्चन एंड आई वांट यू टू आंसर व्हाई इट विल बी अ रैंडम वेरिएबल. क्वेश्चन समझ में आया गाइज? मैं कह रहा हूं कि हमारे पास 4000 लोग हैं गार्गी कॉलेज के. हम 4000 लोगों का हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चेक कर सकते. मैंने 10 लोग उठाए एक सैंपल में. ठीक है. और ऐसे 10 सैंपल ले लिए. मैंने पहला सैंपल उठाया जिसमें मैंने आर्बिट्रली इको ऑनर्स के 10 स्टूडेंट्स ले लिए एंड उसका एक सैंपल मीन आया.
Can you tell me whether the sample mean is a random variable or not? Yes, sir, it will be a random variable. क्यों? The reason is that there will be certain numbers, that is, certain means that will be more likely to occur than the others. So they'll have. No, that's not the reason. I'm talking about a reason that I've already discussed. Manvi, can you tell us कि क्यों होगा? So maybe because the value of that mean depends on the random sample we have collected. Okay, you're close to it, but not exactly. हम already इसके बारे में बात कर चुके हैं. I'll give you a hint. Any linear combination of a random variable will be a random variable. Now can you tell me guys? और लोगों से पूछना होगा. Annie, are you there? Annie. Yes. हाँ. Can you tell me कि क्यों x1 बार जो होगा वो random variable होगा? नहीं. Okay. नहीं, कोई बात नहीं. चलो गाइस, हमने क्लास के शुरुआत में क्या बात करी थी? हमने कहा था कि अगर x एक रैंडम वेरिएबल है, y एक रैंडम वेरिएबल है, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन w भी एक रैंडम वेरिएबल होगा. हमने ये देखा था. यहां पर क्या है? x1 किस चीज से बना है? x1 बार किस चीज से बना है? 10 अलग अलग रैंडम वेरिएबल से बना. x अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल है ना गाइस. हर x एक रैंडम वेरिएबल है. तो any linear combination x1 bar, what is x1 bar? x1 bar is nothing but x1 plus x2 plus x3, ऐसे 10 random variables को ही तो ऐड कर रहे हो गाइस, and divided by 10 कर रहे हो. तो any linear combination of random variables will also be a random variable. x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना. एक सैंपल में x की वैल्यू कुछ आई, दूसरे सैंपल में x की वैल्यू कुछ आ जाएगी, तीसरे सैंपल में x की वैल्यू कुछ और आ जाएगी. x1 की x2 की वैल्यू सिंपली ऐसे ही एक सैंपल में कुछ और हो सकती है. मैंने इको ऑनर्स का 10 स्टूडेंट लिए, तो पहले 10 स्टूडेंट लिए तो कुछ और वैल्यू आ गई. इको ऑनर्स के कोई और 10 स्टूडेंट्स ले लेता हूं तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी. किसी एक को भी रिप्लेस कर दूं तो भी कुछ और वैल्यू आ जाएगी. सो दैट इज व्हाई x1 बार जो सैंपल मीन है वो भी अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल है, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट 10 पीपल व्हिच आर वेरी रैंडम. अब समझ में आया गाइस? Guys, I'll not Yes, move on sir. unless you understand these Yes, aspects. So चलो ठीक है. So हर सैंपल मीन हैज टू बी अ रैंडम वेरिएबल. ठीक है. हर सैंपल से, एक सैंपल से दूसरा सैंपल, ऐसे आप जितने मर्जी सैंपल ले लो, x1 से लेके xn तक आप सैंपल मीन से ले लो, ये सारे सैंपल मीन्स अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं और इनका अपने आप का एक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा जिसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन. ठीक है. इट साउंड्स लाइक अ राइम, बट प्लीज रिमेंबर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन. प्लीज रिमेंबर दिस. या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल. ठीक है. और क्योंकि एक पर्टिकुलर वेरिएबल जो है वो xi जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो सारे के सारे आपके सैंपल मीन्स भी नॉर्मली, सारे के सारे सैंपल मीन्स भी आपके रैंडम वेरिएबल्स बनेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. नाउ इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म रैंडम सैम्पलिंग इज यूज्ड इन अ स्पेशल केस. वी से दैट x1 x2 xn कॉन्स्टिट्यूट्स अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n. ठीक है. जैसे हमने बोला 10 लोगों का हमने वेट उठाया, साइज n. If all of these x's are drawn independently from the same probability distribution, that means each xi has the same PDF. Now what does this mean? हम basically कह रहे हैं कि हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन पता है xi की डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है. ठीक है. पता इन द सेंस हमें पता एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से, फॉर एग्जांपल ये गार्गी कॉलेज की वेट की डिस्ट्रीब्यूशन है. गार्गी कॉलेज वेट डिस्ट्रीब्यूशन. अगर सारे के सारे, अब इससे हम सैंपल्स उठाने की कोशिश कर रहे हैं. इससे हमने उठाया, ये एक बंदा उठा लिया, ये एक उठा लिया, ये एक उठा लिया, ये एक उठा लिया, ये एक उठा लिया, ये x1 उठा लिया, x2 उठा लिया, x3 उठा लिया, x4 उठा लिया, x5 उठा लिया. हम कह रहे हैं कि ये सारे x जो हमने उठाए, ये अगर सेम डिस्ट्रीब्यूशन से उठाए हैं, सेम डिस्ट्रीब्यूशन से, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर हमने उठाए हैं, ठीक है, तो ये अभी तक हमने इसके बारे में बात करी. इफ
if each of these xi's are drawn independently from the same probability distribution, that means each xi has the same PDF, the xi's thus drawn will be known as IIDs. तो ये जो हमने 10 लोग या 5 लोग जो उठाए हैं पूरी पॉपुलेशन से, वो इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स हैं. नाउ इफ ईच xi is normally distributed, ठीक है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली जो गार्गी की पूरी 4000 लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद सम मीन एंड सम वेरिएंस. हमें मीन नहीं पता, हमें वेरिएंस नहीं पता, बट हम कह रहे हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इफ ईच xi is from a normally distributed distribution, if each xi is drawn independently, then we say that xi to xn are identically normally distributed variables where normal PDF being their common probability distribution. But जरूरी नहीं है कि each xi जो हो वो normally distributed से हो, but अभी हम assume कर रहे हैं कि गार्गी की जो पूरी population है वो normally distributed है. Now the concept here that we will be using is this, that अगर आपका x1 से लेके xn तक रैंडम सैंपल है फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन एंड वेरिएंस, देन द सैंपल मीन जो आपका है वो भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा विद मीन एज दिस बट वेरिएंस एज दिस. तो हम बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, दो चीजें कहने की कोशिश कर रहे हैं. आपका एक पॉपुलेशन है जिसमें ईच xi इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन ux एंड वेरिएंस एज दिस. गाइज अगर ये समझ ना आए प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क, बिकॉज अगर ये पॉइंट समझ नहीं आएगा योर द क्रक्स ऑफ योर इकोनोमेट्रिक्स विल बिकम वीक. एंड आई थिंक दिस शुड हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज ये स्टैटिस्टिक्स है, दिस इज नॉट इकोनोमेट्रिक्स टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स में आ जाना चाहिए था, रैंडम सैंपल के टाइम पे ही आ जाना चाहिए था. ठीक है, तो अगर ये जो है, अगर आपका जो PDF है, हम जो PDF की पॉपुलेशन की PDF के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसमें से जो सैंपल आएंगे, हमने जितने भी सैंपल उठाएंगे इस पॉपुलेशन से या जितने भी एक्साइज उठाए, अभी पॉपुलेशन का सैंपल छोड़ो, हमने x1 उठाया, x2 उठाया, x3 उठाया, ऐसे x5 तक हमने 5 लोग रैंडमली उठा लिए. तो ऐसे जो 5 लोगों का जो हमने मीन निकाला x बार, ये x बार चेंज करता जाएगा और x बार का अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा. ये x बार का डिस्ट्रीब्यूशन है गाइस, प्लीज रिमेंबर, ये x का डिस्ट्रीब्यूशन था, ये x बार का डिस्ट्रीब्यूशन है. x बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन जो होगा वो ux होगा. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार इज इक्वल टू ux. यू माइट हैव सीन दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अनबायसनेस. और उसका जो वेरिएंस होगा, वेरिएंस ऑफ x बार विल बी इक्वल टू, ठीक है, दिस इज बेसिकली your this is what we are trying to assert here. Or just to show this to you, let's take, हमने क्या किया, हमने अपनी पूरी पॉपुलेशन से, हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल था. ठीक है, let's talk about this example. हमारे पास एक वेरिएबल था xi which is normally distributed with mean as 10 and variance as 4. ठीक है, यही लिखा है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विद मीन एज 10 एंड वेरिएंस एज 4. तो ये जो है हमारा, ये 10 पे है, इसका मीन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल है. ठीक है, हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन से 10 सैंपल उठाए, 20 सैंपल उठाए, सॉरी 20 सैंपल मीन्स 20, हाँ, हमने 20 सैंपल मीन्स उठाए. नाउ 20 सैंपल मीन्स उठाए हैं, ठीक है, एंड ओके, हर सैंपल मीन जो होगा वो अलग अलग आएगा. तो सपोज ये जो हमारे पास सैंपल मीन आई है, ये हमने 10-20 जो सैंपल उठाए उससे कैसे उठाए, एक सैंपल मीन ये आपका आया x1 बार, ये आया x2 बार, ये आया x3 बार, ऐसे ये x20 बार, ये 20 सैंपल के मीन्स आ गए. इसका भी तो आप एक डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो. आई विल शो यू कि डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा भी कैसे. ठीक है, बट इन सैंपल मीन्स का एक मीन होगा विच इज व्हाट, x डबल बार. ये सारे सैंपल मीन्स हैं, इन सब का अगर आप इन सबको ऐड कर दोगे, सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर जस्ट एडिंग दिस एंड डिवाइडिंग इट बाय 20.
तो आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा x बार बार. मीन ऑफ सैंपल मीन्स वो आ गया आपका 10. Isn't this 10.0.52 very close to the population mean? अभी समझ में आया गाइस? अरे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. एंड Yes, sir. इसका वेरिएंस कैसे निकालोगे? हर एक का वेरिएंस कैसे निकालते हैं? वेरिएंस इज नथिंग बट समेशन x माइनस एक्स बार अपॉन योर n माइनस 1 एक्चुअली. ठीक है, तो वो करोगे तो वेरिएंस कैसे निकालोगे? वेरिएंस आपने कहा कि हर एक xi को इससे सब्ट्रैक्ट करोगे एंड 19 से डिवाइड कर दोगे. यू विल बेसिकली गेट दिस विच इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू 4. अगर आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? आपने बेसिकली क्या किया, आपने रेंज ले ली सैंपल मीन्स की और उसकी फ्रीक्वेंसी देख ली कि अच्छा 8.5 से 8.9 के बीच में एक वैल्यू है, 9 से 9.4 के बीच में इतनी वैल्यू है, 9 से इतनी वैल्यू है. तो इसका आपने एक एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी वैल्यू बना ली और आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ली. व्हाट वी आर सेइंग इज इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा. जितने ज्यादा आप सैंपल लोगे ये उतना ही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा. और व्हाट वी आर सेइंग इज क्योंकि आपका जो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन था जहां से आपने सैम्पलिंग करी है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो आपका मीन आएगा, सैंपल मीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. बट उसका जो मीन होगा वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होगा. बट जो उसका वेरिएंस होगा, इसका जो वेरिएंस होगा वो होगा वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय n. दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. And you can actually prove this as well. Now what I want you to do guys, take this down as a homework. You need to prove that the variance of this is equal to this. You need to prove this. Can you guys prove this guys? Prove कर सकते हो? कोई prove कर सकता है? I'm sure you have done this in statistics. I'm sure expectations 100% होते हैं statistics के अंदर. ये तो stats 2 में भी करा है. Can anyone do this? Can anyone show this? That expected value of x bar is equal to and expected value of variance of x bar is equal to. Can you guys show this? Anyone? कोई नहीं. You want me to do this in class? ये कैसे आया? Okay. Don't worry about it. हाँ, तो variance is so we just plug in the value of mean. We'll be finding out the variance of the means. So the mean is sigma x bar upon n. And the variance of sigma x bar upon n would be the summation of variances of all the x bars divided by 1 by n square, because Exactly. because that's the property of variance. Exactly. So 1 by n square into the sum of variances. And the sum of variances would be n times one of the variance, because we said that the distribution is identical. Exactly. And because अगर identical है तो all the x bars की same variance होगा. ठीक है. और variance is sigma x square और n होगा उसके side में like multiplied होगा, तो we will cut off the n ठीक है. ऊपर नीचे से and 1 by n to variance of x. कौन बोल रहा था ये? Who was this? Nikita. Okay, guys, Nikita has already given the answer, but let me show you this through the way that what Nikita has explained. हम variance of x bar के बारे में बात कर रहे हैं. And Nikita, ये तुमने statistics में सीखा होगा ना? I'm sure ये statistics में. हाँ जी. ठीक है. So variance of x bar क्या है? ठीक है. हम कह रहे हैं और हम variance of x bar के बारे में बात कर रहे हैं, और x bar क्या है? आपके अलग अलग वेरिएंसेस हैं. सैंपल मीन 1 हम इसको लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ x1 बार, x2 बार, x3 बार, ऐसे ये इन सब के वेरिएंस xn बार तक के वेरिएंसेस हैं एंड डिवाइडेड बाय n. हम बेसिकली इसके बारे में बात कर रहे हैं, या इसको आप इन जनरल आप ऐसे ले सकते हो. वेरिएंस इज बेसिकली x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाई n. इसका वेरिएंस आप निकालने की कोशिश कर रहे हो. इसको छोड़ दो. अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, वेरिएंस ऑफ x बार निकालना चाहूँ, ठीक है, तो मैं क्या x बार को मैं ऐसे लिख सकता हूँ गाइस, x1 प्लस x2 टिल xn बाय n. यही x बार होता है. ठीक है. व्हाट इज नाउ
ऑल ऑफ दीज एक्साइज, हमने क्या बोला था, एक्साइज आर IID, ये इंडिपेंडेंट है एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्रॉम अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमें पता है किसी भी xi का मीन जो होगा, हमें पता है ये डिस्ट्रीब्यूशन है विद म्यू एंड सिग्मा x। तो x1 का अगर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहली बात तो ये जो वेरिएंस का, ये जो वेरिएंस के अंदर जो भी टर्म होता है वो बाहर आके स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस xn। किसी भी एक वेरिएबल का वेरिएंस क्या होगा, किसी भी एक वेरिएबल का वेरिएंस, हमें xi का वेरिएंस देखूंगा तो क्या होगा, x1, अगर x1 का देखूंगा तो x1 स्क्वायर या xi स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली। इन सबको ऐड करोगे गाइस तो क्या होगा, इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, n, हर एक का वेरिएंस क्या होगा, x बार सिग्मा स्क्वायर, इसका भी वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर, इसका भी वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर, इसका भी वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर। कितने टर्म्स हैं ऐसे n टर्म्स हैं, तो n इंटू सिग्मा स्क्वायर, और बाहर क्या है, बाहर 1/n स्क्वायर है। व्हाट डिड यू गेट, ये आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, नथिंग वेरी फैंसी अबाउट इट। ठीक है, सो हाँ गाइज, अब याद आया ये चीज, आई होप सबको याद आ गई हो। ओके ग्रेट guys, please be, I know it's a morning time, it's raining, I know you might be feeling sleepy, but still this is a topic where you need to put in a little bit of cerebral capacity। ठीक है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जागो, हो जाएगा। at least the days that we have early classes guys, I understand it's tough, but again, I'll tell you a story guys. The reason I started waking up, my sleep schedule got okay। ठीक है, जब कॉलेज खुलेगा चलो तब बताऊंगा ये चीज। The only reason that I am teaching and not to an IAS is because of my sleeping pattern. That is how much it has had an impact on my life, and I still remember the date guys, 8th of December 2013, when I messed up my entire life। ठीक है, just because I did not sleep that night। ठीक है, so please have a good sleeping pattern। ठीक है, it will haunt you your entire life अगर कोई एक इंसिडेंट गलत हो जाए तो लाइफ में। चलो, so now and that's the day when my entire batch of people who I was guiding and everyone in my cohort went into IAS। सारे, not even an exceptional, 6 लोग, 6 के 6 लोग IAS, except for me। ठीक है, so guys, that's why have a habit of waking up early। ठीक है, go to bed by 11 sometimes, but wake up at 4:35, it will help you in life। now so ये जो है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका हमने वेरिएंस देखा कि हमारा जो वेरिएंस ऑफ x बार है, वेरिएंस ऑफ x बार इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। now let's move on to doing, so ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसी डिस्ट्रीब्यूशन से, एंड इफ यू सी इफ n इज ग्रेटर देन 1 देन इसका वेरिएंस जो होगा वो कम होगा वेरिएंस ऑफ द वेरिएंस ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन। ठीक है, तो जैसे आप n सैंपल साइज बढ़ाओगे तो इसका वेरिएंस कम हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए हम इसको x बार का वेरिएंस देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि सैंपल मीन्स जो है वो एक दूसरे से कितना डिफरेंट है। ठीक है, हम वो कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ the standard deviation of the variance is basically called as standard error। now this is a very important term guys, please note it down। लोग वेरिएंस को स्टैंडर्ड एरर ही बोल देते हैं, which is extremely wrong। जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे x बार का, that is called as standard error। why is it called as standard error? basically because it tells you that on an average आपका एक सैंपल का वेरिएंस एक सैंपल जो है दूसरे सैंपल से कितना दूर है और कितना अलग है। ठीक है, तो that is the kind of thing that you are trying to see, तो which is basically sigma x upon under root n। please remember this,
the positive square root of variance of x bar we obtain as this. It is called as standard error of x bar. इसको standard error of x bar बोलते हैं. ठीक है, standard error हमेशा याद रखना, standard error is a sampling property. जब भी आप कभी भी लाइफ में standard error देखोगे, आपको easily पता चल जाना चाहिए कि ये किसी सैंपल की प्रॉपर्टी आई है, ये पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि पॉपुलेशन में हमेशा हम वेरिएंस देखते हैं. स्टैंडर्ड एरर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ सैंपल. ठीक है, तो ये सैंपल मीन्स का है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन. ऐसे ही हम इकोनोमेट्रिक्स में जस्ट राइट अ स्मॉल नोट है, हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटाज के बारे में बात करेंगे. ठीक है, हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा के बारे में बात करेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 के बारे में बात करेंगे. जस्ट नोट इट डाउन because I will relate this to standard error then as well. Now, okay, ये हो गया. Now, one of the important things to understand is that अगर आप standardize करते हो, अगर if you see the distribution, then your sample mean माइनस योर मीन, अगर आप स्टैंडर्डाइज करते हो इसको, हमने यूजुअली स्टैंडर्डाइज कैसे करते थे, हम स्टैंडर्डाइज करते थे एक्स माइनस म्यू अपॉन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन. ये हमारा यूजुअल स्टैंडर्डाइज का तरीका था. दिस वाज स्टैंडर्ड जेड. ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं यहां पर कि जब हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है, just based on one random sample from the normal distribution, we can say that the expected value of the sample mean is equal to the true mean value, true population mean value. And अभी हम अपेंडिक्स के अंदर भी जाएंगे, हम जब CLT के बारे में बात करेंगे, that अगर आपको probability distribution के बारे में ये चीज पता चल गई कि उसका मीन क्या होने वाला है, then you can say that Z bar जो हमारा सैंपल मीन आया माइनस जो पॉपुलेशन का हाइपोथेटिकल जो भी मीन होगा अपॉन द स्टैंडर्ड एरर ऑफ Z बार और ऑफ X बार, दिस विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद 0,1. I will later on term this as a theorem as well, but this is a result that you need to remember, guys, for any particular distribution. अगर आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके आपके पास मीन आपको पता है, उस मीन में से अगर आप उसका ये सैंपल मीन है, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन सैंपल का स्टैंडर्ड एरर विल ऑलवेज गिव यू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एज 0 एंड वेरिएंस एज 1. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. यू मार्क इट एज अ स्टार and write it somewhere in the back of your copy कि ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा यूज होगा. we will do this as a theorem as well. ठीक है, when I will teach you, आज तो CLT, आज ही मैं आपको बता दूंगा CLT के थ्रू, and CLT I'll teach you, but write this down, guys, and this is something, this is as a axiom you can use in your entire life कि ये चीज प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू होगी, and we will show that this is basically a property through central limit theorem. Now let's see a question, guys, and फिर हम उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं. Now let x denote a number of miles per gallon achieved by a car in a particular model. ठीक है, सपोज आप टेस्ला की कार के बारे में बात कर रहे हो and you get certain miles per gallon, and आपको पता है कि x जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस पता है. अगेन गाइज ये आपको नहीं पता होगा, बट अज्यूमिंग कि आपको यहां पर पता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैंपल ऑफ 25 कार्स हैज ग्रेटर देन 21 माइल्स. आपको पूरी पॉपुलेशन का पता है, ठीक है, आपको पूरी पॉपुलेशन का पता है कि इसका मीन जो है 20 है एंड वेरिएंस जो है इसका 4 है. बट अब आपने क्या किया, आपने 25 कार्स, अब मान लो ये पूरी टेस्ला की वर्ल्ड वाइड फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड सारी फैक्ट्रीज हैं इलॉन मस्क की, एंड उसने चाइना, इंडिया में भी आने वाला है, यूएस, सारी जगह की फैक्ट्रीज का उसने एवरेज निकाला. उसने कहा कि मेरी गाड़ी जो है उसका एवरेज जो है वो 20 माइल पर गैलन देती है, ऑल्दो इलेक्ट्रिक के मान लो वो पेट्रोलियम वाली कार पे आ गया, तो ये 20 माइल बट इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे कुछ उसका कुछ फंडा है, तो उसने कहा कि 20 माइल का देगा.
फिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि यार अच्छा मैं इंडिया का एक सैंपल उठाता हूँ 25 कार्स का, एंड 25 कार्स का सैंपल उठाया और उसने देखा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसका जो सैंपल में जो मीन आएगा, जो सैंपल का जो एवरेज मीन है वो 21 से ज़्यादा है। बेसिकली आप कह रहे हो कि आपने जो सैंपल उठाया वो कुछ यहाँ पर है, उसका मीन कुछ ऐसा आया, ऐसा कुछ के इस तरीके से कुछ, व्हाट इज दैट प्रोबेबिलिटी। तो ये बेसिकली आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू इज बेसिकली आपके पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल आपके पास पता है, आपको x बार बता रहा है कि आपका एक्सपेक्टेड मीन जो है वो आप कितना, जैसे इस केस में 21 है, बट x बार को अगर आप छोड़ दो अभी, आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो जो पॉपुलेशन की मीन है वो क्या है, दिस इज म्यू 20। नीचे क्या आता है गाइस, स्टैंडर्ड एरर आता है। स्टैंडर्ड एरर इज व्हाट, सिग्मा अपॉन रूट n। 25 कार्स थी, 25 कार्स का बेसिकली अगर आप इसको देखो तो व्हाट इज दिस, दिस इज 5 एंड दिस इज योर 2, तो 2/5 इज 0.4। ये आपके पास वैल्यू होगी। आपको पता है कि दिस x बार, ठीक है, गिवन योर x बार वी नो दैट दिस z विल हैव अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आपको और कुछ नहीं करना, अब आपको इसके अंदर x बार की जगह आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। आपने 21 पुट करके देखा, आपके पास एक वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी चेक कर लोगे। आपने कहा, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि 18 से कम होनी चाहिए, आपने 18 वैल्यू पुट कर दी, आपने उसकी z की वैल्यू निकाल दी, तो 5 आ गए, तो एनी केस 3 से प्लस होके तो वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। आपने कहा कि 19 से 21 के बीच में होना चाहिए, तो 98% प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड इट आउट। बट फॉर ऑल ऑफ दिस व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि आप अगर स्टैंडर्डाइज कर दो अपने सैम्पलिंग वाले वेरिएबल को, तो x बार माइनस म्यू अपॉन n, ठीक है, दिस विल, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली योर स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार। दिस वेरिएबल आपने स्टैंडर्डाइज किया है अपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को, will have a normal distribution of 0,1 और 0,1 जो सबका स्टैंडर्ड नॉर्मल है उसकी आपकी प्रोबेबिलिटी सबको पता ही रहती है, तो आप इजीली चेक कर सकते हो। तो दैट इज व्हाई वी ट्राई टू कन्वर्ट एवरीथिंग टू अ स्टैंडर्डाइज्ड z, क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड z या t के अंदर अगर आप कन्वर्ट कर दोगे तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता है, हमें उसका CDF पता है, PDF पता है, हम इजीली प्रोबेबिलिटी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो दैट इज द ओरिएंटेशन कि आपको हर चीज को किसी ना किसी तरीके से एक नॉन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, और जैसे आप उसको एक नॉन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दोगे आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। वो नॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है z हो सकता है वो t हो सकता है वो chi² हो सकता है वो f हो। किस चीज में कन्वर्ट होगा वो डिपेंड करता है कि आप उसके पीछे की थ्योरम्स क्या हैं। कि इस केस के अंदर हमें पता है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा गिवन CLT। यहां तक गाइस समझ में आया? बिफोर आई मूव ऑन टू CLT, एनी डाउट्स गाइस? यहां तक किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? हाँ मेगा बोलो। और किसी को डाउट गाइस, कोई इशू इसके अंदर? ओके, सो व्हाट आई डू गाइस इज आई विल सेंड दिस वीडियो टू यू। इज अर्ली मॉर्निंग वेरी डिफिकल्ट गाइस? अर्ली मॉर्निंग बहुत डिफिकल्ट हो रहा है क्या? तो either what you can do is you can either watch the video, or if you want I can take this particular class in the afternoon if that time schedule allows you। तो देख लो अपना टाइम शेड्यूल में देख लो व्हाट टाइम यू गाइज गेट फ्री। अगर तुम्हें किसी और टाइम पे ठीक लग रहा है क्लास में डिसाइड कर लो। ऑल्दो आई एम सपोज टू टेक द क्लास एट दिस पॉइंट, बट जस्ट इन केस कहीं पर भी इशू आ रहा है, फीलिंग स्लीपी, यू नॉट probably able to give time, या तो वीडियो से कर लेना, या फिर if you want me to shift the time to any mutual time that you decide, because this is again as I told you this is the most important topic। मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि आपको स्टैट्स नहीं आती, और उस बेसिस पे आई एम डूइंग दिस। चलो, सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू CLT, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। नाउ सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स इन योर entire statistics, one of the most cardinal contributions। what central limit theorem says is that अगर आपका ये जो x1 x2 xn जो आया, हाँ, so central limit theorem basically says that if it was basically given by Laplace,
and what it says is that अगर आपका x1 x2 xn is a random sample, ठीक है, from any population. अभी हमने इससे पहले क्या बात करी थी गाइस? इससे पहले हमने बात करी थी कि x1 x2 xn जो है वो इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली ड्रॉन सैंपल है फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. बट अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम कह रहे हैं कि आई रियली डू नॉट केयर कि आपने सैम्पलिंग जो करी है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन से करी है, इररिस्पेक्टिव आपकी कितनी वियर्ड, अगली, स्क्यूड, कैसी भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, आई रियली डू नॉट केयर. अगर उसका एक फाइनाइट मीन है और उसका एक फाइनाइट वेरिएंस है, तो उस जो भी आप सैंपल उठाओगे उसका जब हम सैंपल मीन का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड निकलेगा विद मीन एज म्यू एक्स एंड वेरिएंस एज सिग्मा स्क्वायर एक्स अपॉन एन, ठीक है. एंड दैट इज सच एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बिकॉज इट सेज बेसिकली, ये देखो क्या कह रहा है. अभी हमने जो पिछले एग्जाम्पल हमने क्या बात करी थी, हमने यही वाली बात करी थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, कि आपका xi जो था वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था. हमने कहा था ना, अभी एक एग्जाम्पल लिया था जिसके अंदर हमने अभी 20,4 लिया, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिया, ठीक है. तो अब ये कह रहा है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो ओरिजिनल पॉपुलेशन की, हम पॉपुलेशन के बनाएंगे, ये हम नॉर्मल पॉपुलेशन के बनाएंगे, आपकी पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो नॉर्मल हो या नॉट नॉर्मल हो, वी रियली डू नॉट केयर एज लॉन्ग एज पॉपुलेशन की दो जो पैरामीटर्स हैं, एक म्यू एक्स और एक सिग्मा स्क्वायर एक्स, ये दोनों फाइनाइट हैं. ये टर्म एडेड नहीं है यहाँ पर, बट आई एम टेलिंग यू, एज लॉन्ग एज ये दोनों फाइनाइट है, आई वी रियली डू नॉट केयर कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन की कैसी है. आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो, वी रियली डू नॉट केयर. आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करके हो, हमें डिस्ट्रीब्यूशन से मैटर करता ही नहीं है. इफ योर डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ फाइनाइट मीन एंड अ वेरिएंस, योर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट मैटर. जो भी इससे आप सैंपल उठाओगे, आपने इससे सैंपल उठाया x1 till xn which is a random sample, आपने रैंडम सैंपल उठाया. इस रैंडम सैंपल का जो मीन होगा, इस रैंडम सैंपल का जो मीन होगा वो जरूर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा विद मीन एज म्यू एक्स एंड वेरिएंस एज, एंड दिस इज सच अ as basically as n reaches to infinity. So this basically is telling you that asymptotically it really does not matter. अगर आप सैंपल साइज बढ़ाना शुरू कर दो, ज्यादा से ज्यादा सैंपल लो, ठीक है, इट रियली डज नॉट मैटर कि आपका जो पॉपुलेशन है वो कैसा है. गार्गी की पॉपुलेशन नॉर्मल हो या ना हो, गार्गी की पॉपुलेशन वेट्स का स्क्वायर ले लो जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है, अंडर रूट ले लो, वी रियली डू नॉट मैटर कि आपका अंडरलाइंग पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. बट अगर आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सैंपल ले लिए, देन वो कन्वर्ज कर जाएगा टूवर्ड्स दिस. दिस इज बेसिकली अ कन्वर्जेंस थ्योरम. वो कहता है कि आप कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, उसके सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कन्वर्ज कर जाएगा. whereas this is what CLT says. Whereas the law of large numbers, which is also called the strong law of large numbers, guys, write it down somewhere. It's nowhere mentioned, but जब आप बाद में जाके कहीं पर इंटरव्यू दोगे, they will definitely ask you this. But जो normal law of large numbers बोलता है, large numbers, जिसको हम usually strong law of large numbers भी बोलते हैं, strong law of large numbers, it says कि आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन है वो मीन के इक्वल कन्वर्ज कर जाएगा. जो आपका सैंपल से जो मीन आया वो आपका जो एक्चुअल मीन है पॉपुलेशन का वो कन्वर्ज कर, वो उसकी तरफ चला जाएगा, ठीक है.
तो यहां पर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि पॉइंट का कन्वर्जेंस होगा, कि सैंपल मीन विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। बट यहां पर हम कुछ और बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ही सेम हो जाएगी। गाइज, कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स व्हाट आई जस्ट सेड? दिस इज अ वेरी टेक्निकल थिंग दैट आई एम डिस्कसिंग। So could you please repeat the last part? हाँ, ठीक है, देखो, what I'm saying is there are two different things. हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम सैंपल उठाएंगे, it's basically saying मैंने 4000 लोगों का पॉपुलेशन है मेरे पास गार्गी का, उनका एक सैंपल मीन, उनका एक पॉपुलेशन मीन है विच इज 50। मैं सैंपल का साइज मैंने पहले 10 लोगों का सैंपल लिया, फिर मैंने सैंपल साइज इंक्रीज किया, 20 लोगों का ले लिया, फिर 40 लोगों का ले लिया, 50 लोगों का ले लिया, 60 लोगों का ले लिया, 200 लोगों का ले लिया, 1000 लोगों का ले लिया। धीरे धीरे आई विल सी कि सैंपल मीन जो है विल कन्वर्ज टुवर्ड्स पॉपुलेशन मीन। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, कि जैसे जैसे आप सैंपल साइज इंक्रीज करोगे आप पॉपुलेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाओगे, पॉपुलेशन की मीन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाओगे, इट विल कन्वर्ज टू द पॉपुलेशन मीन। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। और ये पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बारे में बात कर रहा है कि एक वैल्यू एक दूसरे वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, एक वैल्यू एक थ्योरेटिकल वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। या हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। बट ये जो है ये और बहुत ही ज्यादा डिटेल में चली जाती है। सीएलटी कहता है कि एक्स बार तो छोड़ो, आप एक्स बार तो चलो मीन के इक्वल हो ही जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आपका पीछे का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो जाए, आप जो भी आपने ये सैंपल उठाए एक्स बार के, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सारे के सारे एक्स बार, चाहे आप गार्गी कॉलेज का ले लो, आप कमला नेहरू कॉलेज का ले लो, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का ले लो, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ले लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स बार सबका एक्स बार जो होगा वो इसको अप्रोच करेगा। उसका मीन जो होगा वो यूएक्स के इक्वल होगा और उसका जो वेरिएंस होगा वो सिग्मा स्क्वायर एक्स अपॉन एन होगा एज एन गोज टू इनफिनिटी। तो आप फर्क आपको, जैसे इस केस में हमने देखा ना, दो अलग अलग, एक नॉर्मल पॉपुलेशन है, एक नॉट नॉर्मल पॉपुलेशन है, बट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार को देखो, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ गई आपकी, और ये देखो इस केस में भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार देखो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज अ मच मोर स्ट्रॉन्गर बिकॉज ये पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा है। यहां पर आप सिर्फ एक्स बार अप्रोचिंग म्यू के बारे में बात कर रहे थे, यहां पर आप एक्स बार अप्रोचिंग म्यू के बारे में तो बात कर ही रहे हो। वो तो आप इक्वल टू आप कह ही रहे हो कि वो तो इसके इक्वल होगा, आप उसके वेरिएंस के बारे में भी कुछ बोल रहे हो, और जब आप वेरिएंस और एक्स म्यू के बारे में कुछ बोल रहे हो तो आप पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को कह रहे हो कि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ही जो होगा वो सेम होगा। दिस इज व्हाट CLT ट्राइज टू से, ठीक है। तो इसीलिए आप बहुत अलग अलग पॉपुलेशंस को कंपेयर कर सकते हो। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ लैपलास कंट्रीब्यूशन, इतना बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन था कि आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को किसी भी और डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर कर सकते हो। आप हार्वर्ड के बच्चों को गार्गी के बच्चों से कंपेयर कर सकते हो, गार्गी के बच्चों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों से कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ CLT विच सेज दैट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और फिर आप अब आपके पास अलग अलग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्स बार के, अब आप उनको कंपेयर कर लो कि अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे, किसी का मीन ज्यादा है या नहीं, किसी का एवरेज। अब आपके पास हार्वर्ड के बच्चों का कुछ ऐसा होगा, हो सकता है गार्गी का कुछ ऐसा, हो सकता है इलाहाबाद का कुछ ऐसा। आप देख लो इनके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है। डिड यू गाइज अंडरस्टैंड कि हम ये क्यों कर रहे हैं गाइज, और CLT इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? समझ में आया? Sir, can you please show CLT through an example? आई विल शो CLT, ये CLT थ्रू एन एग्जाम्पल, यही तो था, ये भी तो CLT थ्रू एग्जाम्पल ही था, ये भी तो एग्जाम्पल CLT का ही है। CLT क्या कर रहा है यहाँ पर? आप कह रहे हो कि मेरे पास एक्स बार है, ठीक है, और अलग अलग एक्स बार हैं, और मेरे पास पॉपुलेशन का मीन है, और आप कह रहे हो मेरे पास सैंपल का वेरिएंस है और मेरे पास n है। हम सिंपल इसी के अंदर तो हम कह रहे हैं कि ये z है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा विद 0,1, ठीक है। बट इन जनरल हम कह रहे हैं जो हमने यहाँ प्रूफ किया था, इरेज दिस एंड ये देखो, हमारे पास सैंपल का जो मीन था वो क्या था, हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी
वो क्या था, उसका मीन था और उसका जो वेरिएंस था वो 4 था, यही था। हमने 10 सैंपल उठाए, हमने इससे इस पूरे xi से, ये xi है, xi का डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने इससे 20 सैंपल उठाए हैं, ठीक है, ये 20 सैंपल्स के 20 मीन है, ठीक है। हमने उसका वो निकाला, डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी गॉट फ्रॉम दिस। हमने उन सैंपल मीन्स का जब मीन किया तो क्या आया हमारा मीन, हमारा सैंपल मीन्स का मीन्स क्या आया 10.0.52 which is extremely close to 10, ठीक है। और वेरिएंस क्या आया, वेरिएंस आया 0.339, ठीक है, ये हमारा वेरिएंस आया। दिस वेरिएंस, ये जो वेरिएंस है, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो हमारा वेरिएंस आया पॉपुलेशन का विच इज 4, ये हमारा 4 था। What we are trying to say here, अंशिका, is that जब हम ये n बढ़ाएंगे, जब हम नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल्स जब हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो वेरिएंस होगा इसका क्या होगा, समेशन स्क्वायर अपॉन ये होना चाहिए था, तो आपका x बार का था 4 अपॉन n कितना था 20, सो 4 अपॉन 20 जो है ये आपकी वैल्यू आनी चाहिए 1/5 आपकी वैल्यू आनी चाहिए। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि ये आपकी ये अप्रोच करेगी, जैसे जैसे आप n को इंक्रीज करोगे, ये आपने अभी 20 सैंपल्स लिए थे, जैसे जैसे आप सैंपल्स को इंक्रीज करोगे आपका जो x बार बार जो है, जो बेसिकली आप कह रहे हो मीन ऑफ सैम्पलिंग मीन्स, ये एब्सोल्युटली 10 को अप्रोच कर जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा, ये हो सकता है 10 पॉइंट और ज्यादा क्लोज हो जाए उससे, और जो आपका इसका जो वेरिएंस है वो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन n, विच इज बेसिकली 4/20 था ना, विच इज 1/5। तो बेसिकली अभी आपका जो वेरिएंस आ रहा है वो आ रहा है 0.33। ये 0.33 की जगह ये धीरे धीरे कन्वर्ज होके ये पहुंच जाएगा 0.2 के। दिस इज व्हाट CLT सेज कि जैसे जैसे आप सैंपल साइज इंक्रीज करोगे आपका x बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा विद मीन एज μx एंड वेरिएंस एज, इस केस में दिस विल बी 10 एंड दिस विल बी 0.2। समझ में आया अंशिका? Yes, sir. Thank you. गाइस बाकियों को समझ में आया ये चीज, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से? यस Sir, निकिता, I have a doubt. हाँ बताओ निकिता। So we talked about two different cases. One was the strong law of large numbers, and the other was CLT. So in the former one, we're talking about the expected value of the sample means. It approaches to mu, or just the sample mean if we're increasing the sample size. हाँ, just the sample mean will approach mu as your n increases basically, कि आपने एक सैंपल लिया, उस सैंपल में पहले आपने 20 लोग, पहले 50 लोग थे, आपने 100 लोग कर दिया तो और मीन के पास हो जाएगा, और मीन के क्लोज हो जाएगा। तो वी आर जस्ट सेइंग कि एक वैल्यू को कन्वर्ज कर रहा है, एक सैंपल मीन एक दूसरे पॉपुलेशन मीन की वैल्यू को, तो पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हो, एक हाइपोथेटिकल पॉइंट और एक एक्चुअल थ्योरेटिकल पॉइंट, वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो टॉक अबाउट कन्वर्जेंस, ये भी कन्वर्जेंस के बारे में बात कर रहा है, बट एक पॉइंट कन्वर्जेंस के बारे में बात कर रहा है। यहाँ Suppose in this example, sample means जो सारे के सारे हमारे पास, तो फर्स्ट है 9.6, तो सपोज अगर हम n बहुत बढ़ा देते हैं तो वो भी 10 के अराउंड आ जाएगा। हाँ, so all of these sample means would approach 10. हाँ, of course. अच्छा, that. हाँ, तो वो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स है, बट हाँ. जब अब आप कुछ और कह रहे हो, अब आप कह रहे हो कि जब मैं x बार का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करूंगा तो x बार का डिस्ट्रीब्यूशन ही कन्वर्ज कर जाएगा इसको, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट CLT सेज। एंड बिकॉज x बार जो है वो फर्क नहीं पड़ता कि उसके पीछे का बैकग्राउंड का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप उसको इस फॉर्मेट में ले आओगे, और जैसे आप इस फॉर्मेट में ले आओगे आप उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हो, और स्टैंडर्डाइज कर सकते हो तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो। समझ में आया निकिता? हाँ, yes. क्योंकि आपने एक्सपेक्टेड लिखा था इसलिए मुझे लगा। हाँ, अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अब आपको पता चल गया कि सपोज हार्वर्ड के स्टूडेंट्स की तो बहुत अच्छा IQ होगा, तो बट आप उनको भी आप इसी फॉर्मेट में ले आओगे, और इस फॉर्मेट में जो भी चीज आ गई, कोई भी चीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेट में आ गई,
तो उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें करना पड़ता है x बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर। हमें बस ये करना है। ऐसे करते के साथ ही आपने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, और स्टैंडर्डाइज करके तो आप गार्गी के स्टूडेंट्स को हार्वर्ड के स्टूडेंट्स का इजीली कंपेयर कर लो, क्योंकि दोनों एक सेम ओरिजिन एंड सेम प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। आई होप गाइज यू गॉट दिस सेंस। Yes, sir. बट गाइज टेल मी ऑनेस्टली, दिस इज व्हाट यू शुड हैव डन इन स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स में कवर हुआ कि नहीं हुआ था? क्योंकि ये था स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन, ये पढ़ा तो होगा स्टैटिस्टिक्स में, आई एम श्योर। ये पढ़ा था गाइस स्टैटिस्टिक्स में, CLT तो पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, तो CLT पढ़ा होगा। Yes, sir. बट इसकी आत्मा समझ में आ गई आज। as I told you, I am more concerned about understanding the soul of the subject, not the dramatics around it. Sir, एक second. When we're talking about the sample size, हाँ, how does it affect the first sample mean? क्यों नहीं मतलब affect sample करेगा? size तो हम सैंपल मतलब या साइज तो फिर वी आर सेइंग कि हम 10 लोगों को लेने के बजाय हम 20-30 लेंगे। हाँ, धीरे धीरे उस 20 को 100 कर दो, 100 को 200 कर दो, आप पॉपुलेशन की तरफ भी तो बढ़ रहे हो। हाँ, तो वो वाला सैंपल साइज हम बढ़ा रहे हैं। हाँ, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ सैंपल्स वी आर टेकिंग? वो तो डिफरेंट है ना। हाँ, नंबर ऑफ सैंपल, अगर आप नंबर ऑफ सैंपल्स भी बढ़ाओगे तो भी वो सेम हो जाएगा, बट आप नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ाओगे तो आप सैम्पलिंग मीन के बारे में बात कर रहे हो, आप सैंपल मीन के बारे में बात नहीं कर रहे। दोनों में डिफरेंस है। हाँ, एक सैंपल मीन बोल रहे हो और एक सैम्पलिंग का मीन बोल रहे हो कि पूरे आपने x बार का सैंपल लिया, हाँ, और फिर उसका मीन। दोनों के दोनों ही अप्रोच करेंगे। दोनों अल्टीमेटली लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स भी यही आपको बोल रहा है कि सैंपल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार विल बी इक्वल टू म्यू x, और आपको CLT भी यही बोल रहा है इन द एंड। बट CLT गोज वन पॉइंट फर्दर। वो कहता है कि x बार, वो म्यू को तो अप्रोच करेगा ही, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मली होगी, जो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स नहीं बोलता। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स डजंट टेल यू एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार, व्हाट CLT डज। yes sir, understood. Thank you. Okay, let's move on to T distribution, guys. Now, T distribution is also called as students T distribution. ठीक है? I'll give you certain trivia about ये T distribution कैसा था, क्यों आया, वो background बाद में बात करेंगे, ठीक है? But हमें पता है कि x बार का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू CLT विद मीन एज दिस एंड वेरिएंस एज दिस। ठीक है, हमें इसके बारे में पता है। बट द प्रॉब्लम गाइज इज दैट लाइफ में, जैसा मैं आपको बता रहा था, आपको कोई भी पॉपुलेशन के बारे में तो बताया गया। अगर सोचो आपको गार्गी कॉलेज के पूरे की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन पता ही है 4000 लोगों का, तो आप सैम्पलिंग करोगे क्यों? इट्स समथिंग लाइक कि यार मुझे तो पूरी पॉपुलेशन पता है गार्गी की, और मुझे गार्गी का मीन भी पता है, मुझे गार्गी का वेरिएंस भी पता है। अरे अगर आपको गार्गी का मीन और वेरिएंस पता है तो आप सैम्पलिंग करके क्यों बिना बात टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको जब पूरे पॉपुलेशन ही पता है तो। द पॉइंट इज कि आपको कभी भी पॉपुलेशन की ये मीन और वेरिएंस कभी भी आपको पता ही नहीं होगी। ठीक है, इसी को तो आप जानने की कोशिश कर रहे होगे। अल्टीमेटली आप सैंपल से आप पॉपुलेशन के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो, आप उल्टा थोड़ी ना जानने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे पॉपुलेशन पता, मैं सैंपल का देखना चाह रहा हूं। बट दैट ऑल्सो विल बी ट्रू अगर आपके पास हो तो। बट what the kind of condition that we are in is that we will never be able to ascertain this. ठीक है, but the problem is, so this is so provided that both mu x and sigma square x are known. But suppose we only know mu x and estimate this, ठीक है, sample, then what we need to do is we need to replace our sample our population mean with the the population standard deviation with the sample standard deviation. तो जब आप उस वाले कंडीशन में आ जाते हो जब आपके पास पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं है, x बार का वेरिएंस आपके पास नहीं है, म्यू एक्स को तो आप फिर भी एस्टिमेट कर सकते हो या हाइपोथेसाइज कर सकते हो कि मेरा हाइपोथेटिकल वैल्यू मैं कह रहा हूं कि ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मेरे सैंपल से ये आ रहा है बट मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं। ये तो आप फिर भी आप अज्यूम कर सकते हो, आप वेरिएंस अज्यूम नहीं कर सकते हो। वेरिएंस आपको अपने सैंपल से ही मिलेगी। तो सैंपल का जो आपने वेरिएंस उठाया, ठीक है,
जब आप इस z के अंदर इसको जब आप सैंपल के वेरिएंस से रिप्लेस कर देते हो, that becomes a t variable. Now that is not just the only way of getting t variable. ठीक है, I will tell you a different theorem of t variable as well. ठीक है, but not right now. If you still want to see that theorem, what you need to do is guys, मैंने ना अपने क्लास नोट्स भी भेजे आपको आज, चेक सेकंड जो चीज भेजी थी आपको, इकोनोमेट्रिक्स के क्लास नोट्स भेजे थे. Guys, these are my class notes, but these class notes are from the first batch that I taught Gargi के अंदर. ठीक है, that's your super senior batch, 2016 pass out batch. ठीक है, all you need to do for your finals guys, आपको सिर्फ ये 72 पेजेस पढ़ना है. 72 पेजेस में पूरा सिलेबस है आपका. इनफैक्ट इफ यू गो टू SRCC, उनको उससे अगर आप नोट्स मांगो तो आपको ये वाले नोट्स दे देगा. ठीक है, बट माइंड यू गाइज, इसके अंदर क्वेश्चंस नहीं है जो मैं क्लास के अंदर डील करूंगा. इसके अंदर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको आज पढ़ाई वो सब नहीं है. इसके अंदर एक दो एरर्स हैं, डमी वेरिएबल्स में मैंने नोट्स बनाते हुए कुछ एरर करे हैं, एंड प्रूफ जो है इसमें कंप्लीट नहीं है. कई प्रूफ्स मैंने इसके अंदर, क्योंकि ब्रिविटी ऑफ स्पेस आई वांटेड टू रिड्यूस द साइज, इसलिए वो चीजें नहीं है. बट इफ यू गो टू माई नोट्स एंड यू गो टू पेज नंबर 17, you will get all the probability distributions which are related to normal distribution. ठीक है, तो chi square distribution कैसे जनरेट होती है, t distributions कैसे जनरेट होती है, then f distribution कैसे जनरेट होती है, वो सारी distributions I've already dealt with है. ठीक है, जैसे chi square का ये रहा independent t distribution, ये रहा देखो, it's basically a relation between a normal distribution and a chi-square distribution. ठीक है, तो क्योंकि वेरिएंस आपकी chi-square डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक chi-square डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंपेयर करोगे. ठीक है, तो यू विल गेट अ टी डिस्ट्रीब्यूशन. ये हम बाद में बात करेंगे. ठीक है, आई विल शो दिस टू यू कि ये कैसे है. बट फॉर नाउ, सो इफ यू सी हियर व्हाट वी हैव डन इज कि आपके पास पूरी की पूरी पॉपुलेशन, आपके पास पूरी की पूरी पॉपुलेशन का वेरिएंस तो होगा नहीं. व्हाट यू विल हैव इज जस्ट द सैंपल वेरिएंस, और सैंपल वेरिएंस को कंप्यूट करने के लिए यू विल डिवाइड इट बाय, दिस इज द फॉर्मूला गाइस, एस, ये आपका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, xi minus x bar. नाउ कैन समवन टेल मी कि ये n-1 क्यों है, which is also called as you basically call as degrees of freedom also. But can someone tell me degrees of freedom guys? पढ़ा होगा I'm sure 100%, statistics में भी आता है और उसके अंदर भी आता है, data analysis में भी आता है. Can someone explain me degrees of freedom? कोई भी, Java's degrees of freedom कोई भी नहीं है. Sir, not very sure of it. पहले स्वस्ति एक चीज बताओ, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पहले तो मुझे ये बताओ. Sir, am I audible? हाँ, यू आर ऑडिबल. स्वस्ति पहले ये बताओ कि पढ़ा हुआ है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या नहीं पढ़ा हुआ. पढ़ा तो है, but I think it was told to us that this concept is something that we will not be able to understand at large at this given intellect that we have. Why is that so? कोई नोबेल प्राइज विनिंग कोई कंसेप्ट थोड़ी ना. And I mean, this is something that we were told that this concept is something that will be able to understand entirely at a later stage. Not at all. ठीक है, that's erroneous basically. Stats के बेसिक कंसेप्ट में आ जाता है. That's not the case कि आपको कुछ basically अगर किसी भी सैंपल का वेरिएंस निकाल रहे हो तो आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो पता होना ही चाहिए कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है. ठीक है, सो दैट्स, आप तुम लोगों ने टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है. Yes, sir. जब टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो 100% पता होना चाहिए कि टी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड ऑन अ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. All we know for degrees of freedom is that it is the value of how many independent variables that we can find. हाँ, but what is that independent variable? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ. I actually went on YouTube to find this कि n-1 क्यों होता है. अच्छा. To watch the videos on that. So I saw that when we are replacing mean by x bar, because we don't have mean here, what happens is that we are actually not. It's like we are not getting one value, which is mean now.
वी हैव x बार, सो एक वैल्यू ऑल्टर हो गई है, इस वजह से जो हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है n-1 है। आई एम सॉरी बट दिस इज ऑल दैट आई अंडरस्टूड। ठीक है, नहीं, यू परफेक्टली राइट। ठीक है, नाउ लेट मी शो इट टू यू व्हाट स्वस्ति हैज सेड। आपके पास तीन पॉइंट्स हैं, 1 2 एंड 3, ये तीन चीजें हैं। ठीक है, अब मैं इसका वेरिएंस निकालना चाहता हूं या इसके बारे में कुछ भी बताना चाहता हूं, वेरिएंस निकालना चाहता हूं, तो मेरे पास इसका मीन होना चाहिए गाइस। ऑल ऑफ यू अग्री? वेरिएंस निकालने के लिए क्या होगा? वेरिएंस का फॉर्मूला इज xi माइनस x बार, तो मुझे x बार चाहिए होगा। ठीक है, अब जब मैं सैंपल का मीन निकालूंगा, ठीक है, जब मैंने एक बार इसका मीन निकाल दिया विच इज 2, तो अब मैं मेरे पास ऑब्जर्वेशन हैं, इन 3 ऑब्जर्वेशन में से सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो कोई भी वैल्यू ले सकती है, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन क्या होगी, एक ऑब्जर्वेशन तो वो होगी जो मीन 2 बनाएगी। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ये इन तीनों का मीन जो है वो 2 आ गया। ठीक है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अब मैं A, B और C ले लूं इनको, तो अगर मैं ये 3 ऑब्जर्वेशन ले लूं और उसका मीन मुझे पता है 2 है, उसका मीन 2 है, तो दैट मीन्स if A takes any value, A can take any value, B can take any value, C has to take a value which makes the mean as 2। तो सिर्फ 2 ही तो ऑब्जर्वेशन है जो कुछ भी वैल्यू ले आप ले सकते हो, बट तीसरे को तो वही वैल्यू लेनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया गाइस? ये चीज समझ में आई? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जस्ट अ सेकंड गाइस, आई एम गेटिंग अ कॉल, होल्ड ऑन अ सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि 3 ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, अब 3 ऑब्जर्वेशंस का आपको मीन पता चल गया, आपने मीन फिक्स कर दिया। अब आपने तीन ऑब्जर्वेशन थी, एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू थी 1, एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू थी 2, एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू थी 3। आपने इनका मीन निकाल दिया 2। अब मीन 2 निकाल दिया तो ये ऑब्जर्वेशन A, B और C, अगर 3 ऑब्जर्वेशन, अगर मैं इनकी वैल्यू चेंज कर सकता हूं, तो मैं सिर्फ 2 की वैल्यू, किसी भी 2 की वैल्यू चेंज कर सकता हूं, बट तीसरे की चेंज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तीसरे की वैल्यू हैज टू बी सच दैट थर्ड की वैल्यू क्या होगी, थर्ड की वैल्यू वो वैल्यू होगी जो मीन 2 बना देगी। समझ में? क्योंकि इन तीनों का मीन तो 2 होना चाहिए। suppose this becomes 4, this becomes 2, this becomes 4, so what should be the value of C that makes the mean as 2? तो कुछ माइनस में कुछ हो जाएगा, या जीरो हो जाएगा इस केस में, कि 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ओनली, क्योंकि ये 0 की वैल्यू फिक्स हो गई ना गाइज, क्योंकि 2 + 4 + 0 डिवाइडेड बाय 3 विल बी इक्वल टू 2। तो आपने C की वैल्यू फिक्स कर दी एकदम से। तो इंडिपेंडेंटली A और सिर्फ 2 ही ऑब्जर्वेशन है जो कोई भी वैल्यू ले ले, इसको आप 3 ले लो, इसको आप 4 ले लो, इसको आप कुछ और वैल्यू ले लो, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो उस तरीके से जब आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करते हो, तो आपने कोई पैरामीटर आपने एस्टिमेट किया है, और उस पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए, उस पैरामीटर को क्योंकि आपने एस्टिमेट किया है, उसकी वजह से बाकी जितने भी n वेरिएबल्स हैं उसमें से एक जो वेरिएबल है वो उसकी वैल्यू फिक्स हो गई है। ठीक है, जैसे यहां पर 3 थे ना, यहां पर ABC, 3 में से एक की वैल्यू फिक्स हो गई है 2, एंड 3 - 1, 2 जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कोई भी वैल्यू ले सकती है। Degrees of freedom is equal to 2. That means these 2 observations can take any damn value. But the third observation is such that it will make the mean as 2. And that is why it's called as degrees of freedom being equal to 2. And that depends on how many parameters are you estimating. जितने आप पैरामीटर एस्टिमेट करोगे उतनी आपने वैल्यूज फिक्स करनी शुरू कर देनी है। इसमें हमने एक पैरामीटर एस्टिमेट किया x बार, आप एक पैरामीटर और एस्टिमेट करना शुरू कर दो वेरिएंस, आपकी एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स, बेसिकली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज नथिंग बट जो भी आपका सैंपल है माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर्स एस्टिमेटेड। दिस इज व्हाट यू नीड टू, एंड ट्रस्ट मी, आस्क 90% of Delhi University students and teachers, they will not be able to explain this. Degrees of freedom सिर्फ आपके नंबर ऑफ पैरामीटर्स की, अरे कैसे आ रहा है वो, you need to know to write down to the basic कि कैसे है,
ये 2 कैसे है, ये n-1 क्यों है, n-1 सिर्फ n-1 नहीं रहेगा, ये n-k भी हो सकता है, बट क्यों है, कैसे फिक्स हो रहा है, अब समझ में आया गाइस? एनी डाउट इन दिस? ओके, ग्रेट. सो as you have it here that before we compute s square x, which is basically the sample variance, we must first compute x bar. जो हमने यहाँ कंप्यूट करा x bar, इसका अगर वेरिएंस निकालना चाहोगे पहले तो x bar चाहिए ना, क्योंकि वेरिएंस क्या होगा, 1 minus 2 plus 1 minus plus 2 minus 2 plus 3 minus 2, इनका सम करोगे और डिवाइडेड बाय n करोगे, यही तो वेरिएंस होता है. तो उसके लिए x बार तो आना जरूरी है ना. और अगर आपने x बार ही फिक्स कर दिया तो आपने एक वैल्यू तो फिक्स कर दी, 2 ही वैल्यू तो इंडिपेंडेंटली हुई. उससे क्यों डिवाइड करोगे आप, n से क्यों डिवाइड करोगे, n-1 से करोगे ना, जो वैल्यूज इंडिपेंडेंटली ले सकती हैं, जो आपके इंडिपेंडेंट n है. तो इसीलिए हम, since we use the sample value to compute x bar, we have n-1 and not n as independent variables where observations to compute s square. तो इसीलिए we lose 1 degree of freedom. तो अगर जब आप सैंपल इन 3 वैल्यूज का जब आप वेरिएंस लोगे तो उसको डिवाइड करोगे 2 से and not 3 से, एंड जब भी आप पॉपुलेशन का, जब भी आपके पास वेरिएंस नहीं होगा, जब भी आपके पास सैंपल का वेरिएंस होगा, तब आप टी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाओ. T distribution is also a symmetric distribution and T greater and n greater than 30 तो almost similar values देना शुरू कर देते हैं, and the variance and it's defined on उसका जो mean है वो 0 है, ठीक है, and the variance is k upon k minus 2. The variance of T distributions defined for degrees of freedom 2 is k upon k minus 2. और जैसे जैसे आपका k जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको ये दिखाई देगा कि ये वैल्यू जो है, सपोज दिस इज 100/98, तो 100/98 बहुत ही माइन्यूट सी वैल्यू हो गई. ये 1000/998, तो ये और वैल्यू जो होगी और छोटी हो गई, तो मतलब और क्लोजर पहुंच गई. तो इन दैट सेंस जो है, जितना ज्यादा आपका n बढ़ना शुरू हो जाएगा उतना इन दैट सेंस यहाँ पर k है, उसको k बोलते हैं यहाँ पर. So if you see, in sum, if we draw a random sample from a normal population with mu x and sample variance this, but we replace the population variance with the estimated variance of the sample, this follows a T distribution, and the k denotes is the degrees of freedom. So k is nothing but n-1, ठीक है, n-1 degrees of freedom. and यहाँ जो k है, अगर आपका n बढ़ना शुरू हो जाएगा तो k भी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जितना जैसे जैसे आप n बढ़ाना शुरू करोगे, आपका जो t डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्चुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है. दिस इज व्हाट इज, सी k की वैल्यू t डिस्ट्रीब्यूशन का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखो, पहले इतना है, k 30 पे इतना हो जाता है, k 100 पे इतना हो जाता है. तो t डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन as k approaches a higher value. तो ये देखो 120 पे तो बिल्कुल नॉर्मल ही है. We'll talk more about T distribution, guys, and then I will do these 3-4 examples, and then we will move on to chi-square and F distribution. आज की क्लास समझ में आई guys सबको? Guys, you have to be, this is one issue with your class. आपकी क्लास बिल्कुल या तो सॉरी है या इंटरेक्टिव नहीं है, ठीक है. You have to be interactive, guys. This is an important topic. I'm telling you again and again. If you stay back, अगर इस कोर्स में अगर आप पीछे रह गए तो your entire foundation of econometrics will be weak, ठीक है. So make sure I'll just upload this video today, ठीक है, and then we can talk about, you can go through this video अगर just in case you were feeling sleepy. एंड कोई और डाउट है तो पहले कल की क्लास में हम पहले वो डाउट्स लेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू chi-square distributions and then F distributions and so on, and then I will probably introduce you to econometrics per se, ठीक है. चलो, no, before econometrics I would want to do hypothesis testing with you guys, ठीक है. पहले hypothesis testing करेंगे, फिर उसके बाद I will move on to, let me